ये फिल्म साउथ की रीमेक है, तो क्या ये साउथ में भी रिलीज होगी? देखिए, हम एक हिंदी फिल्म बना रहे हैं, ठीक है, तो हिंदी फिल्मों का भी एक अपना मार्केट रहता है साउथ में, तो बिल्कुल रिलीज़ होगी। और आई एम श्योर वहाँ पे जो लोग हिंदी फिल्में देखते हैं उनके लिए ये एक अलग एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने ऐसी फिल्म हिंदी फिल्म नहीं देखी होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि क्या किस लैंग्वेज में बनी है, बिकॉज इस तरह से देखें तो 3 लैंग्वेजेस में बन चुकी है, राइट। आई थिंक हमें जो इसमें दिख रहा है वो है कि अगर हम इस कहानी को लेके एक हिंदी फिल्म बनाएं तो क्या वो एक एक्साइटिंग फिल्म है, क्या वो एक एक्साइटिंग स्टोरी है, और वो हर दर्जे से उस पर खरी उतरती है, और वो आप देखेंगे 31 को, तो ऑफ कोर्स रिलीज होगी साउथ में भी। How was your entire experience working with Nishikant, as well as going to Goa and seeing that place, the other side of Goa? How was your experience out there? Did you get a chance to see the other place? Yeah, but I'd seen that side of Goa earlier. Singham में भी मैंने देखा था। Singham में भी एक section of the film interiors में shoot किया गया था। But गोवा का है कि गोवा जब आप जाते हो तो आपको काम करने का मूड नहीं होता, छुट्टी मनाने का मूड होता है, और निशी काम कर रहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे निशी की ये लगती है कि निशी, जैसे तबू ने कहा, कि बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड है, और शाम को 6 बजे के बाद जो मुझे चाहिए वो उसे भी चाहिए, तो कोई टेंशन नहीं है। विशाल जी, आपने तब्बू जी के साथ काम किया, अजय देवगन जी के साथ काम किया, लेकिन दोनों को साथ में एक बार भी काम नहीं किया, तो क्या हम फ्यूचर में देखेंगे? मैं अभी बोल रहा हूँ, प्लीज दोनों को तैयार करो अगली फिल्म के लिए ना। दे बोथ आर माय फेवरेट वन। और मैं काफी टाइम से विशाल से कह रहा हूँ कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट आर यू थिंकिंग, तो विशाल हमेशा मुझे कहता है कि अभी ये बना रहा हूँ, इसके बाद कुछ वर्कआउट करते हैं। So there'll obviously be comparisons to the film and to the actors also. So how do you take that, and how do you really not worried about comparisons, because we know that our film has shaped up very well. Everybody has performed very well, and she's kept everybody in very much control. So of course the performances would be different क्योंकि characters अलग हो जाते हैं। जैसे कि निशी ने कहा कि जब कहानी गोवा की शिफ्ट हो जाती है, वो कुछ और करता है, वो किसी और किस्म का आदमी है, और जो साउथ में फिल्में बनी है वो उसमें छोटे विलेज की कहानी है। तो सबने अलग अलग तरीके से ये फिल्में बनाई हैं। अच्छी बात ये है कि ये फिल्म 3 लैंग्वेज में बनी है, और तीनों लैंग्वेजेस में ये पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छी चली है, तो आई थिंक इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड। How was the total experience, and was it difficult to play a mother's role? No, it wasn't difficult. This is my daughter. She's adorable. You feel love for both of them the moment you see them. No, that wasn't tough. It is a very interesting role, very well edged out. There's a lot to do for every character in the film. And it's a film which has a very simple emotion, so an emotion which anyone can connect with. So it doesn't matter which language you speak, but when you see that film, when you see that story, when you see those characters in that situation, you instantly feel for them. And like being said before, no one's right and wrong. So I just enjoyed being in that film where it's just, you can perform and you can explore yourself. Working with Ajay, I'm a big fan of his, been always admired and appreciated his work. So yeah, it's an honor to work with him. He's a very giving actor. Even the camera is not on him, he's performing. So and if acting is all about reacting, it's very easy to act with him. And everyone, Nishikant is very calm, relaxed. You can ask him n number of questions and he'll calmly answer all over again and again. So it's easy to get the feel of the character when you have Nishikant directing you. And the whole team, I'm just excited to be part of it. Vishal ji's music, Gulzar Saab, lyrics, and a lovely production. Well, if the directors take me, producers take me, of course. तब आपको हैदर में हमने देखा एक बहुत प्रोटेक्टिव मदर बनी है, इस फिल्म में भी एक प्रोटेक्टिव मदर के किरदार में ही नज़र आ रही है। क्या फितूर में भी हम कुछ इस तरह का देखेंगे या कितना अलग देखेंगे आपको? जब फितूर आएगी तब उसके बारे में बात थोड़ा तो बता सकती हैं। नहीं, इस वक्त अब लेट्स टॉक अबाउट दिस फिल्म। But I just have to say one thing about Tabu. I love her. Thank you. Oh, thank you. She's adorable. From getting Halim to biryani to all the love, she's adorable. Thank you.
जब आप एक जगह होते हैं तो मिलते हैं और बातें करते हैं और साथ बैठते हैं। वही हुआ, पता नहीं किसने खींच के वो तस्वीर, बहुत लोगों ने खींची थी वहाँ तस्वीरें, तो किसने कहाँ से डाल दी वो हमें नहीं पता। काजल इज नॉट वर्किंग इन दिस फिल्म राइट नाउ, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दृश्यम। आपने अभी अपने रोल के बारे में बताया कि आपका किरदार जो है वो अपने दिमाग से लड़ता है, तो आपको और अक्षय खन्ना के साथ एक पहले देख चुके हैं जिसमें आप अपने दिमाग से लड़ते हैं, क्या उसी तरह का ये भी फिल्म है? कौन सी फिल्म है? दीवानगी। दीवानगी में भी कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग थे और लोगों को पता नहीं चलता था आदमी क्या कर रहा है और क्या हो जाता है। इसमें भी ऐसे ही सिचुएशंस है काफी, बट उसमें कैरेक्टर थोड़ा नेगेटिव तरफ जाता है, इसमें ही इज पॉजिटिव, तो ये डिफरेंस है मुझे लगता है। Hi, how did your sister help you in preparing for the role in this film? This movie happened in 2 days. I gave the audition and I was finalized. So I really didn't get time to take too much feedback from her because she was not in India. But she's always been a big support, very helpful, and yeah, I think sisters always help, be it she's from the media or not. Thank you. I was very nervous. I'm still very nervous. So I had a great time and I would like to thank everybody, the whole team. It was a fabulous experience and I hope you all like my work. And that's it. I don't know what to say. So what kind of release are you planning for the film, considering the fact that it is a content-driven film and... So I think, it's first of all, it's a big film, so that defines certain parameters. So it will be pretty wide. That's one aspect of it. The other aspect of it is the way the whole campaign is sort of, panning out. So it's a thriller, so we don't want to reveal too much. We want people to experience the film. But at the same time, I think the campaign should be able to convey what is the pull of the story. It must be able to generate an intrigue. एक curiosity होनी चाहिए. You should be wanting to really dying to see the film. I think if we are able to do that, I think we'll be successful. And as I said earlier also, this is Ajay in a very different role. This is Ajay who's not been seen like this in a while, and I'm sure everybody is going to absolutely enjoy it, because I think acting, cinema, any creative field is about doing something different, exploring new dimensions, and that's what this film does, and that is what is reflected in the marketing as well. वो इतने प्रोसेस से निकले कि अब याद नहीं कि क्या हुआ था, क्योंकि पहले उन्होंने एक लाइन दी थी जो मैंने बनाई, फिर वो लाइन चेंज हो गई, तो फाइनली दम घुटता है. बट आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यू गेटिंग इट इन दिस. इसलिए जो आप कह रहे हैं वो मैं बहुत टाइम से करना चाहता था, जैसे कि दीवानगी हो गई, जख्म हो गई, कंपनी हो गई, तो लोग मुझे कहते थे कि आप ऐसी फिल्में क्यों नहीं करते. ऐसी फिल्में मैं इसलिए नहीं करता था क्योंकि डर लगता है कि ऐसी फिल्म या तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए, या फिर ये ऐसी पिक्चर बहुत ज़्यादा चलेगी नहीं. तो बहुत टाइम के बाद मुझे एक कहानी सुनाई जब गई डिटेल में, दृश्यम. मैंने फिल्म नहीं देखी अभी तक ओरिजिनल. आई गॉट एक्साइटेड. वरना कई कहानियां आप सुनते हो और आपको लगता है कि ये अच्छी है, लेकिन कल तक मैं सोचता हूँ. ये ऐसी स्क्रिप्ट थी कि मैंने सुनते ही बोल दिया ओके. कई फिल्में जो होती हैं वो बॉक्स ऑफिस के परे होती हैं, मतलब कि आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि आपको पता होता है कि जो भी हो ये फिल्म लोगों को पसंद ज़रूर आएगी. तो दिस इज़ वन ऑफ दोज फिल्म्स. तो जो आपने कहा है वो जब तक मुझे सही सब्जेक्ट नहीं मिला मैंने नहीं किया, अब मिला तो कर दिया. When I'm acting, I'm just working as an actor. My director is at home in a locker. Unfortunately, we didn't have very much to do. Mostly I was watching, he was acting. But the experience, like everybody has told you again and again, it's been wonderful. आपने पहले भी पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया है, तो आईजी मीरा प्ले करने में सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा? कोई पुलिस ऑफिसर से इंस्पायर्ड रही हैं आप? नहीं, एक्चुअली फिल्म में इस कैरेक्टर के साथ इतना हो रहा है और उसका खुद का पर्सनल कैरेक्टर इतना वेल डिफाइंड है फिल्म में कि वही मेरी इंस्पिरेशन थी. और टफ पार्ट ये था कि उसे बहुत ही हार्टलेस होना था और सबको मार पड़वानी थी फिल्म में, अजय को, श्रेया को, छोटे बच्चों को. तो वो मुझसे बहुत मतलब वो तकलीफ़ होती है.
देखने में, बट करने में मुझे कोई इतनी खास तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स जब आप कैरेक्टर में होते हो तो आप यू कांट अफोर्ड टू यू नो अलाउ योर इमोशंस टू रूल व्हाट यू आर डूइंग और कम इन द वे, बट वो बहुत हार्ड डिसीजन था। प्रैंक्स का इतना एक्चुअली समय नहीं मिला क्योंकि हमारा बहुत कम काम साथ में था, लेकिन करते तो हैं, अब हम बड़े हो गए हैं पूरा। तब्बू, क्या अब नेशनल अवार्ड जीतने के बाद क्या बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट आपके पास आ रही हैं? मेरे पास हमेशा ही फॉर्चुनेटली अच्छी स्क्रिप्ट्स आती हैं, आती थी और शायद होपफुली आती रहेंगी। मेरा नाम नूरानी जादव है। वाह, वेरी गुड। विशाल जी, विशाल जी आपसे जानना चाहेंगे, अभी पीसी शुरू होने से पहले आपने कहा था कि आप रेगुलर जैसे सॉन्ग बनाते हैं उससे हट के कुछ गाना बनाना चाहते थे, लेकिन निशिकांत जी आपके पास सूथिंग वो वैसे सॉन्ग लेकर आए। क्या आप वाकई में अपने जो सूथिंग सॉन्ग है उसके अलावा कुछ आइटम सॉन्ग जैसा कुछ बनाना चाहते हैं गुलजार साहब के साथ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे हिट गाने बनाने का मन करता है। पर इस तरह के गाने बड़े रेयर मिलते हैं जहाँ डायरेक्टर इस टेस्ट के साथ आए, वो बहुत रेयर मिलता है। वो तो मैं अपनी फिल्म में भी कर लेता हूँ आइटम गाने, पर इस तरह का काम करना और बाहर की फिल्म करने में बड़ा मज़ा आता है। सर, FTI का मुद्दा हम जानना चाहेंगे। आप बहुत सेंसिबल डायरेक्टर हैं, क्या राय रखते हैं FTI के स्टूडेंट्स जो जिस दौर से गुजर रहे हैं उनके बारे में? आई थिंक दृश्यम के बारे में ही रहे बात तो ठीक है, वैसे आई एम विद द स्टूडेंट्स। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया।